Hello friends, I welcome you once again in this circular series of CGST. Today we'll be recording fifth video which will start from the circular number 16 to I think it's 16 to 20 we have recorded. It will be starting from circular number 21 to 25. So friends, let's begin the discussion on circulars. So we'll be starting with circular number 21. Circular number 21 is dated 22nd of November 2017, and in this the clarification with relation to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on vehicles like cranes etc. is given. Now friends, as we all know that the contractors may have to carry the tools and spares along with them. The question arose whether they can carry it without the payment of tax or it will be treated as supply or whether it will be exempted. So the circular says that the issue of IGST exemption on interstate movement of various modes of conveyance between the distinct person as specified in 25(4) of the CGST Act, carrying goods or passengers or both, or for repairs and maintenance, except in case where such movement is for further supply of the same conveyance, was examined and a circular 1/2017 dated 7th July was issued. This we have already discussed, and therefore the clarification was that interstate movement shall neither be treated as supply of goods nor a supply of services and therefore will not be leviable to GST. So जो 1/2017 हमने नोटिफिकेशन देखा, सर्कुलर देखा था, उसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने कर दिया था कि इस तरह का कोई भी मूवमेंट रहेगा, it will neither be treated as supply of goods nor supply of services and therefore there is no question of leviability of GST. Now the issue which is pertaining to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes etc. was discussed in the GST Council meeting which was held on 10th of November 2017, and in the meeting the council has recommended that circular number 1/2017 shall mutatis mutandis apply to interstate movement of such goods. तो उन्होंने कह दिया कि वन सर्कुलर नंबर जो था वो जो बोलता था उसी तरीके से इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, रिग्स की, टूल्स एंड स्पेयर्स या व्हील्स पे जो गुड्स मूव हो रहे हैं, क्रेन्स वगैरह, उस पर भी एप्लीकेबल होगा, एंड एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फॉर सप्लाई ऑफ द सेम गुड्स, अगर फर्दर वहां से सप्लाई होने के लिए वो है, उसको छोड़ के बाकी सभी सिचुएशंस में 1/2017 सर्कुलर में जो बोला गया है वही प्रिंसिपल लगेगा, एंड सच इंटरेस्टमेंट shall be treated neither as supply of goods nor supply of services and hence the GST will not be applicable. So friends, this was 21/2017. तो एक बात बहुत क्लियर है, इंटरस्टेट मूवमेंट्स अगर अपने व्हील्स पे अगर क्रेन्स ले जा रहे हैं, रिक्स ले जा रहे हैं, टूल्स स्पेयर्स ले जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं आती. इट विल बी सिमिलर एज इट वाज गिवन इन 1/2017 notification. So friends, now moving to notification number 22, circular number 22. Circular number 22 is dated 22nd November 2000 and I opened the same circular. It is 22. Circular number 22 is clarification on issues regarding to treatment of supply by an artist in various states and supply of goods by artists from galleries. तो जो वेरियस काइंड ऑफ सप्लाईज हैं एक आर्टिस्ट के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स में, और गुड्स की सप्लाई है आर्टिस्ट के द्वारा गैलरीज में, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है. 21 दिसंबर का सर्कुलर है, 22 नंबर का सर्कुलर है which gives the clarification for the same. Now first and foremost, the question which was before the board was that various representation they have received regarding the taxability of artworks by artists in different states. डिफरेंट स्टेट्स में जो आर्ट वर्क कर रहे हैं आर्टिस्ट, उसकी टैक्सीबिलिटी के लिए इनको कई बार रिप्रेजेंटेशंस आए, और वो कौन से आर्ट वर्क जो डिफरेंट स्टेट्स में कर रहे हैं अदर देन द स्टेट इन विच दे आर रजिस्टर्ड. तो अगर मैं लेट से बॉम्बे में रजिस्टर्ड हूँ और मैं अगर दिल्ली में जाके वो परफॉर्म कर रहा हूँ या कोई आर्ट का काम कर रहा हूँ, तो उसकी टैक्सीबिलिटी कैसे होगी. तो इन सच केसेस इफ द आर्ट वर्क इज सेलेक्टेड बाय द
buyer, then the supplier issues a tax invoice only at the time of supply. करेक्ट? अगर बायर के द्वारा आर्ट वर्क सेलेक्ट किया गया है तो उसका जो इशुएंस होगा इनवॉइस का वो टाइम ऑफ सप्लाई पे होगा. इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट द आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई. तो उसका एग्जीबिशन के अंदर अपना आर्ट वर्क, मान लेते हैं कोई पोर्ट्रेट है तो वो दे देते हैं और वो एग्जीबिशन लगता है सप्लाई के लिए. There seems to be a confusion regarding the treatment of this activity, whether it is a taxable in the hands of artist when the same is given to the art gallery or at the time of actual supply. उस वक्त ये taxable होगा जिस वक्त वो आर्ट गैलरी में आप दे रहे हो, या जब एक्चुअली आर्ट गैलरी से सप्लाई होगा तब वो टैक्सेबल होगा. दिस क्वेश्चन वाज देयर बिफोर द अथॉरिटीज and within the power under section 168 they are clarifying for the purpose of uniformity in the implementation. Now what they are saying, rule 55 sub rule 1 clause C, it says rule 55 clause 1 sub rule 1 clause C says that the supplier shall issue a delivery challan. Supplier shall issue a delivery challan for initial transportation of goods where such transportation is for reasons other than by way of supply. So ये बहुत क्लियर है कि रूल 55 बताता है कि जहाँ पे ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है जहाँ पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई के अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, आप अपनी ब्रांच में भेज रहे हैं, रिपेयर के लिए भेज रहे हैं, तो उस केस में यू हैव टू इशू अ डिलीवरी चलन. along with that you have to issue a e-way bill. So further sub rule 3 of the said rule provides that the said delivery challan shall be declared as specified in rule 138 of the said rules. It is also seen that sub rule 4 of rule 55 of the said rules provides that where the goods being transported are for the purpose of supply to the recipient, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अगर वो सप्लाई के पर्पज के लिए है, बट द टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड. जैसे अप्रूवल के लिए आपने कुछ भेजा ज्वेलरी के केसेस में, या फैशन के जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसके केस में, तो इनवॉइस उस वक्त इशू नहीं हो सकता क्योंकि कंफर्म नहीं है. तो उस केस में it says the cases where the invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply, the supplier shall issue a tax note invoice after the delivery of goods. As soon as the delivery is confirmed, he will issue a tax invoice. So combined reading of the above provisions indicates that the artwork for supply on approval basis can be moved from place of business of the registered place, that is artist Bombay में जो registered मेरे example में, to another place Delhi में वो भेज सकते हैं on the basis of a delivery challan with e-way bill wherever applicable, and the invoice may be issued at the time of actual supply of the artwork, और उस वक्त उसकी liability GST की arise होगी. It is also clarified that the supplies of artwork from one state to another state will be interstate supply and it will attract integrated tax in reference to section 5 of the IGST Act. They are further clarifying that in case of supply by artist through galleries, जो आर्टिस्ट गैलरी के थ्रू सप्लाई करते हैं, there is no consideration flowing from the gallery to the artist where the artwork are sent to the gallery for exhibition and therefore the same is not a supply. क्योंकि हमने सेक्शन 7 के स्कोप में भी समझा है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड दीज आर नॉट द रिलेटेड पार्टीज. सो देयरफॉर आप गैलरीज में जब आर्टिस्ट देता है, बॉम्बे से दिल्ली भेजता है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, एंड इट इज ओनली व्हेन द बायर सेलेक्ट्स द प्रोडक्ट which is displayed at the gallery that the actual supply will take place and applicable GST would be payable at the time of such supply. तो जब वो गैलरी में से सेल होगा तब वो सप्लाई माना जाएगा. यानी इसमें दो क्वेश्चन थे. एक, जब आप खुद लेके जो जा रहे हैं तो उसमें ये माना जाएगा कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, ये आप डिलीवरी चलान और ई-वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो वो लेके चले जाइए, जब बिकेगा तब आप इनवॉइस कर दीजिए. दूसरा, जब आर्टिस्ट जो है वो सप्लाई कर रहा है किसी गैलरी को और गैलरी से वो सप्लाई हो रहा है, तो जिस वक्त आर्टिस्ट गैलरी को सप्लाई कर रहा है उस वक्त वो सप्लाई नहीं है. जब वो गैलरी से सप्लाई होगा, सेल होगा, तब वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी आएगा. तो फ्रेंड, दिस वाज 22 सर्कुलर नंबर 22 dated 21st December 2017. Moving to circular number 23 dated 21st December again, it says issues in respect of maintenance of books of accounts relating to additional place of business by principal or an auctioneer for the purpose of auction of tea, coffee, rubber, etc. So the question in this is कि बहुत सारे representations आए जहाँ पे डिफिकल्टीज हो रही थी कि जो प्रिंसिपल है और ऑक्शनर है वो कैसे बुक्स को मेंटेन करें हर जगह पे और हर एडिशनल प्लेस पे इन रिलेशन टू दी
stock of goods like tea, coffee, rubber, etc., which was meant for supply through an auction. तो ऑक्शन से जो बिकने वाला था उसका स्टॉक को वो कैसे मेंटेन करे, क्योंकि सेक्शन 35 तो बोलता है कि आपको हर चीजों की मेंटेन करनी है, और अगर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पे भी आपको मेंटेन करनी है. So therefore, under section 168, for the purpose of uniformity in the implementation, they have issued this circular and the clarification. So now what they are saying is, as per the first proviso to section 35 subsection 1, both the principal and the auctioneer are required to maintain the books of accounts relating to their additional place of business in such places. वहीं पे उनको मेंटेन करना है. It has been represented that both principal as well as auctioneer may be allowed to maintain the books of accounts related to additional place of business at their principal place of business itself. तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके के हुए कि आप दोनों को, यानी प्रिंसिपल को और ऑक्शनर को, दोनों का परमिशन दे दीजिए कि वो एडिशनल प्लेसेस का भी जो स्टॉक है या डॉक्यूमेंट्स है वो सारा वहीं पे मेंटेन कर ले जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है. इस इशू को एग्जामिन किया गया एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ इशू सेक्शन 168 के हिसाब से, यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से ये क्लैरिफाई कर रहे हैं. पहला, द प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर ऑफ टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर वेयर हाउसेज वेयर सच गुड्स आर स्टोर्ड एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. जो भी उनके स्टॉक गोडाउन्स रहते हैं, वेयर हाउसेज रहते हैं, उसको उनको दिखाना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ से रजिस्टर कराना पड़ता है. बायर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सच वेयर हाउस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. जो बायर है उसको भी दिखाना पड़ेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इफ ही वांट्स टू स्टोर द गुड्स परचेज थ्रू ऑक्शन इन सच वेयर हाउसेज. तो ये क्लियर है. फिर बोथ द प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स relating to each and every place of business in that place itself as per the first proviso to subsection 1 of section 35. तो section 35 subsection 1 जो है उसका फर्स्ट प्रोवाइजो क्लियरली ले डाउन करता है कि ना ही केवल आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स मेंटेन करने हैं, जबकि अगर आपके एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो वहां के भी सारे रिकॉर्ड्स आपको वही मेंटेन करने हैं, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे ही. So however, in case of difficulties which are faced in maintaining books of accounts, it is clarified that they may maintain the books of accounts relating to additional place of business at their principal place instead of such additional places. तो they have said कि additional places से relevant जो records होंगे वो चूंकि दिक्कतें आ रही हैं इसलिए आप उसको principal place पे maintain कर सकते हो. Further they are saying such principal or auctioneer shall intimate their jurisdictional officer in writing about the maintenance of books of accounts relating to additional place of business at their principal place of business. So this is also mandated now कि जो jurisdictional proper officer होगा उनको उसको रिटर्न में बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो लोग बुक्स का, वो एडिशनल प्लेसेस का भी बुक्स जो है वो प्रिंसिपल प्लेस पे ही मेंटेन हो रहा है. और नेक्स्ट, further the principal or the auctioneer shall be eligible to avail input tax credit subject to fulfillment of other provisions of the act and rules made thereunder. बाकी की जो कंडीशंस है और जो प्रोविजंस है उसको फुलफिल करेगा तो ही इन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. Further, it is clarified that this circular is applicable to the supply of only tea, coffee, rubber, etc. टी, कॉफी, रबर में ही ये circular applicable है, where the auctioneer claims ITC in respect of supply made by him by the principal, made to him by the principal before the auction of such goods. जहाँ पे ऑक्शनर ये क्लेम करता है आईटीसी को उस सप्लाईज के लिए जो प्रिंसिपल उसको करता है बिफोर द ऑक्शन ऑफ सच गुड्स एंड द सेड गुड्स आर सप्लाइड ओनली थ्रू द ऑक्शन. और वो जो गुड्स हैं वो ऑक्शन से ही सप्लाई होते हैं. केवल इसी सिचुएशन में दिस सर्कुलर विच इज सर्कुलर नंबर 23 विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा जिस जो भी इसमें क्लैरिफाई किया है. और ये क्लैरिफाई भी टी, कॉफी, रबर के लिए किया गया है. उसी केसेस में ये सर्कुलर एप्लीकेबल रहेगा और वही एप्लीकेबल रहेगा जहां पे ऑक्शनर क्लेम करता है आईटीसी उन गुड्स पे जो प्रिंसिपल उसको सप्लाई करता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, और बाद में फिर ऑक्शनर उसको ऑक्शन से सेल करता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज 23/2017, 21 दिसंबर 2017 का सर्कुलर. मूविंग टू नेक्स्ट 24/2017, it says manual processing, filing and processing of refunds on account of inverted duty structure, deemed export and excess balance in electronic cash ledger. तो फ्रेंड्स, रिफंड मॉड्यूल कॉमन पोर्टल पर नहीं होने की वजह से 31 दिसंबर 2017 को दे हैव टेकन अ कॉल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल दैट जितने भी एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म आ रहे हैं पर्टेनिंग टू द रिफंड क्लेम्स
on account of inverted duty, deemed exports, excess balance in electronic cash ledger, वो सारे manually fill होंगे. All these forms will be filed manually and it will be processed also manually till the further orders. तो जब तक आगे जो पोर्टल है वो सेटल नहीं होता तब तक ये पूरा मैनुअल होगा. दिस हैज बीन क्लैरिफाइड बाय दिस सर्कुलर 24/2017. नाउ इन दिस रिगार्ड द बोर्ड in exercise of powers under section 168 for uniformity hereby clarifies that the provisions of 17/2017 जो हमने पहले वीडियो में देखा है, इसके पहले वाले वीडियो में 17/2017 में जो प्रोविजंस दिए हैं और जो प्रोसीजर बताया है, that shall also be applicable to the following types of refund in as much as they pertain to method of filing of refund claim and its processing which is consistent with the relevant provisions of CGST Act. तो जो भी प्रोसेसिंग CGST एक्ट के हिसाब से होनी है या रूल्स के हिसाब से होनी है, उसमें 17 नंबर पे जो प्रोसेस बताया है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. So what they are saying, refund of unutilized input tax credit where the credit has been accumulated on account of rates of input being higher than the output, yani inverted duty of goods or services or both, except those supplies which are notified by the government on the recommendations of the council, except उन केसेस में जहाँ पे रिफंड मना किया गया, जैसे नोटिफिकेशन था 5/2017, उसमें रिफंड मना किया गया है कि आप इन प्रोडक्ट्स का रिफंड नहीं दोगे. सेकेंड, रिफंड ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके लिए भी आप मैनुअली अलाउ कर रहे हैं. और रिफंड ऑफ बैलेंस इन दी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसने कैश पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया उसका रिफंड, कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड, वो भी इसमें कवर कर दिया. फर्दर दे आर सेइंग दैट द रिफंड क्लेम in respect of zero rated on account of inverted duty, deemed export and excess balance in electronic cash ledger, वो आपको टैक्स पीरियड के हिसाब से मंथली बेसिस पे RFD 01A में फाइल करना है. RFD 01 इज द ऑनलाइन फाइल, ऑनलाइन फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिफंड एंड ऑन RFD 01A इज द मैनुअल फॉर्म. सो लेकिन उन केसेस में जहां रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में, और वो GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन ले रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, उन रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन ले रहे हैं GSTR 1 के केस में, वो व्यक्ति रिफंड का एप्लीकेशन क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे. दे विल हैव टू अप्लाई रिफंड ऑन क्वार्टरली बेसिस, नॉट ऑन मंथली बेसिस. Now further it is stated that the refund for the tax period may be filed only after filing the details in GSTR 1. Further, it is to be ensured that the valid return in 3B has been filed for the last tax period before the one in which refund claim application is filed. तो 3B GSTR 1 उस टैक्स पीरियड का और 3B जो है उसके पिछले टैक्स पीरियड तक का फाइल होना कंपलसरी है. Since the date of furnishing of GSTR 1 from July onwards has been extended, while the dates of furnishing GSTR 2 and 3 are yet to be notified, it has been decided by the competent authority to sanction refund provisionally एक्सेप्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट इस जंक्चर. तो वो जो प्रोविजनली एक्सेप्ट करेंगे सेक्शन 41 के हिसाब से, चूंकि 2 और 3 नहीं है तो मैचिंग नहीं है, तो प्रोविजनली जितना भी एक्सेप्ट करेंगे उसके हिसाब से वो प्रोविजनली उसको प्रोसेस जो रिफंड है उसको सैंक्शन करेंगे. हाउएवर द रजिस्टर्ड पर्सन्स अप्लाइंग फॉर रिफंड मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग, उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा दैट द अमाउंट of refund sanction would be paid back to the government in case it is found subsequently that the refunds of clause C of subsection 2 of section 16, यानी जहां पे सामने वाले सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, रेड विद सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स रिफंडेड. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फ्यूचर में पता चलता है, तो ये अंडरटेकिंग उसको देना पड़ेगा दैट द एंटायर अमाउंट व्हिच ही इज टेकिंग विल बी रिफंडेड बैक. This undertaking should be submitted manually along with RFD 01A. ये उसको undertaking फाइल करनी पड़ेगी. Then the form has been given. Statement 1, ITC accumulated due to inverted. 1A, ITC accumulated due to inverted exchange. Second, clause 2, first proviso to section 54(3). ये आपको यहाँ पे फाइल करनी है respective details. And then गवर्नमेंट ने 48/2017 का नोटिफिकेशन निकाला है जहाँ पे 147 के हिसाब से कुछ सप्लाईज को उन्होंने डीम्ड एक्सपोर्ट बोला है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है और ये फॉर्म है नीचे. सो दिस विल बी फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स.
एंड देन सर्कुलर नंबर 17 के अंदर जो भी रेफर किया गया है जुरिडिक्शनल ऑफिसर को, उसी को मैनुअल एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। और जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होगा आपका रिफंड का, वहाँ पे जो अमाउंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो गया था वापस से रीक्रेडिट हो जाएगा। सो दिस एंटायर प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड in the earlier circular 17 number, and therefore it is not required to be discussed again. This is what I feel. I think now para 6 it says sanction of refund central tax state tax की respective tax authorities करेंगी, and ये decide किया गया है that both center and state authorities shall nominate a nodal officer for the purpose of licensing through a dedicated email ID. वो उसको एक nominate कर देंगे एक nodal officer को, and where the amount of central tax and state tax refund is ordered to be sanctioned provisionally by the central tax authority, a sanction order is passed in accordance with the provisions of rule 91(2) of the CGST rules. The central tax authority shall communicate the same to the nodal through the nodal officer to the state authority for making payment of the sanction refund. तो दो है, डुअल स्ट्रक्चर है, तो सेंटर अगर पास कर देगा तो वो एक लेटर बना के नोडल ऑफिसर के थ्रू स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन भेज देगा दैट दिस हैज बीन सैंक्शन बाय अस एंड काइंडली रिलीज द पेमेंट, सो द पेमेंट विल बी अकॉर्डिंगली रिलीज्ड। एंड ये जो कम्युनिकेशन है ये प्राइमरीली बनेगा ईमेल के साथ, ये ईमेल से होगा, और स्कैन कॉपी ऑफ सैंक्शन ऑर्डर जो है RFD 04 या 0 ये इसके साथ में लगेगा। एप्लीकेशन फॉर रिफंड 01A की कॉपी लगेगी और एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड नंबर लगेगा। और अकॉर्डिंगली द जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सेंटर और द स्टेट एज द केस में भी, अगर स्टेट होगा तो सेंटर को भेजेगा, सेंटर है तो स्टेट को भेजेगा, शैल इशू RFD 05 एंड सेंड इट टू द DDO फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन फॉर रिलीज ऑफ द पेमेंट। आफ्टर द रिलीज ऑफ द पेमेंट by the proper account officer to the applicant bank account, the nodal officer of the central and the state tax authority shall inform each other that they have complied with and the payment has been released. And again, the manner of communication shall be followed at the time of final sanctioning of the refund also. So provisionally करेंगे तो भी करेंगे, फाइनल के समय भी ये चीज होगी। और in case of refund claim for the balance amount of electronic credit ledger, again the procedure 2.4 of paragraph of circular number 17 में है, same the amount of refund shall be debited in the electronic cash ledger, उसमें से डेबिट हो जाएगा और इनको कैश मिल जाएगा। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट ड्रॉबैक ऑफ ऑल टैक्सेस अंडर GST, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड और स्टेट और यूनियन टेरिटरी should not have been availed while claiming refund of accumulated ITC under 54(3) clause 2। अगर आपने ड्रॉबैक GST का ले लिया है तो फिर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। और इसके लिए भी एक डिक्लेरेशन उनको RFD 01 के साथ 1A के साथ जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, दिस इज दी सर्कुलर विच प्रोवाइड्स फॉर दी मैनुअल सैंक्शन ऑफ द रिफंड, कि मैनुअली आप कैसे सैंक्शन करोगे जब तक कि आपके सिस्टम से इन प्लेस नहीं आते। तो दिस वाज सर्कुलर नंबर 24 डेटेड 21 December 2017। मूविंग टू सर्कुलर नंबर 25। Circular number 25 speaks about the submission of advance ruling application manually। होता क्या था फ्रेंड्स कि जब एडवांस रूलिंग आया तो एडवांस रूलिंग का प्रोसेस ये था कि वो ऑनलाइन फाइल होगा और ऑनलाइन उसके बाद ही वो एडवांस रूलिंग चलेगा। तो काफ़ी टाइम तक जुलाई में आ गया, लेकिन दिसंबर तक एडवांस रूलिंग का फंक्शंस वर्क नहीं करता था। और एडवांस रूलिंग का मतलब ये है दैट इट हैज़ टू बी टेकन इन एडवांस, द रूलिंग इज टू बी टेकन इन एडवांस टू know whether the tax is applicable, how much it is applicable, what rate is applicable, how to calculate the value, and so many questions are to be asked. So that was not allowed, and therefore manual filing of applications for advance ruling and appeals before the advance ruling authority, appellate authority of advance ruling, was allowed as per the rules amendment। and then the circular 25/2017 circular भी उसी पर्पस के लिए इशू किया गया। सो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन का है नहीं, सिंपल सा फंक्शन है। जो फंक्शन पहले ऑनलाइन होना था वो अभी पूरा मैनुअल होगा, वो मैनुअल प्रोसेस होगा, लेकिन जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। तो उन्होंने ये बताया कि आप जैसे यहाँ पैरा 4 में अगर आप देखोगे तो आप यूज़र आईडी एडवांस रूलिंग में आप बनाइए, यूज़र सर्विसेज में जाके अपना ईमेल आईडी एंटर करिए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, OTP आएगा, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए जैसे रजिस्ट्रेशन में करते हैं। जैसे OTP आप सबमिट करोगे तो जो सिस्टम है वो आपको एक टेम्पररी ID दे देगा, वो उसके डिक्लेयर्ड मेल में और मोबाइल नंबर में चला जाएगा। इस आईडी के बेसिस पे द एप्लीकेंट हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ द फीस। जो 5000 रुपीज का फीस है CGST और रिस्पेक्टिव SGST का, वो आप पेमेंट करेंगे उस आईडी के बेसिस पे।
और उसके बाद उसको वो डाउनलोड करने देगा चलन को, और फिर एप्लीकेशन मैनुअली आप फाइल करेंगे जिसके साथ आप ये चलन को अटैच कर देंगे। और फ्रेंड्स नीचे ये वही है जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के रूल्स में दिया गया है कि भाई इसमें साइन कौन करेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी सिग्नेचर्स हैं वो इनमें से कोई भी बंदे करेंगे, जो सब लॉ में सिमिलर रहता है। फिर इसी तरीके से अपील का है कि अपील का भी प्रोसेस वैसा ही रहेगा। आप उसी आईडी को यूज़ करके आप अपील फाइल करेंगे और मैनुअली फाइल करेंगे, और 10,000 रुपीज़ का जो चलन है वो उससे जनरेट करके उसको आप अटैच करेंगे। दैट इज़ द सिंपल प्रोसेस, बाकी एवरीथिंग इज सेम। So I'm not going into detail of this. So we have discussed 25/2017 also, जो 21st December 2017 को आया था। Friends, in this video we have tried to cover the rather I would say we have covered circular number 21 to circular number 25. So friends, I hope this video will be useful to you, and now we'll be taking up in next video circular number 26 onwards. So friends, thank you so much for giving the patience hearing. Thanks a lot.